Railways under the British. We all know that Britishers controlled almost the whole area of our country. India is a vast country and they had to move from one place to another for the efficient administration or to control revolts. So they needed an efficient means of transport. For this, they introduced railways in our country for their benefit. For the benefit of British administration, political control and trade. ठीक है, they had to move from one place to another to control the whole country or for the British administration. यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में मूवमेंट के लिए जो उनके ऑफिसर्स थे, जो उनके सोल्जर्स थे, दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, जहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उन एरियाज़ में ईज़िली मूव करने के लिए, ईज़िली ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे नीड एन एफिशिएंट means of transport. So they introduced railways, and there is another purpose also, that is trade purpose. From the areas of production to the port areas. ठीक है, how could they move the things? It takes a long time to transport all the things to port areas. इंडिया का हर एरिया तो पोर्ट एरिया नहीं है ना, तो प्लेन एरियाज से या हिली एरियाज से चीज़ों को पोर्ट एरिया तक लाने के लिए, गुड्स को पोर्ट एरिया जहाँ पर वो शिप्स में अपलोड होकर ब्रिटेन तक जाएंगे, तो पोर्ट एरिया तक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवेज़ की ज़रूरत पड़ी. ठीक है, दे नीड रेलवेज़ टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे इंट्रोड्यूस्ड रेलवेज़. बट रेलवेज़ helped not only the Britishers, it helped Indians also. इंडियंस के लिए भी जो एक हमारा डिफरेंस था, जो हमारा एक लॉन्ग डिस्टेंस था, वो इजीली कवर करने का मेथड हमें मिल चुका था, हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल चुका था टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, तो इट चेंज लाइफ ऑफ इंडियंस ऑल्सो. पीपल ऑल्सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया केम इन क्लोज कंटैक्ट. Now it is easy to move from one place to another, so we could easily move from our areas. ठीक है, तो they came into contact. जो हमारे इंडियंस थे वो भी क्लोज कंटेक्ट में आना स्टार्ट हो गए. And the communication brought about the awareness against social evils, need of education and freedom from foreign exploitation. When they came into close contact, they came to know that the problems were same. Okay, there were some social evils also, and there was a need for the freedom from foreign exploitation. Okay, and there was a need of education. जब नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन से मिले या ईस्ट इंडियन एरियाज़ में रहने वाले इंडियन से मिले, सो दे केम टू नो कि प्रॉब्लम्स आर द सेम. ठीक है, देयर वॉज अ लिटिल डिफरेंस इन द प्रॉब्लम्स. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम्स थी और उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं थे. और
देयर वॉज अ नीड ऑफ एजुकेशन इन ऑल द एरियाज ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, एंड ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड all the Indians, not only the South Indians or the North Indians or the eastern side Indians, they exploited all the Indians for their benefit. ठीक है, तो जब ये जो कन्वर्सेशंस होना स्टार्ट हुई, जब ये आइडियाज़ पता लगे लोगों को, ये बातें पता लगी, तो दे became united, वो इकट्ठा हुए and they started revolt against Britishers or British exploitation, foreign exploitation. Indian Railways made a beginning on April 6. You should underline this line कि इंडियन रेलवेज कब स्टार्ट हुई? 6 अप्रैल 1853 में. Okay, when the very first train ran over a stretch of 21 miles from Bombay to Thane. फर्स्ट ट्रेन बॉम्बे टू थाने, इसके बीच में इसने ये डिस्टेंस कवर किया, ओके, 21 माइल्स का, और इसमें 14 रेलवे कैरेजेस थे और 400 गेस्ट. इट कैरिड 400 गेस्ट एंड इट हैड 14 रेलवे कैरेजेस. 14 इसके कैरेजेस थे, 14 कैरेजेस थे, और इसमें 400 गेस्ट जो थे वो सफ़र कर रहे थे, वो मूव कर रहे थे. ओके, व्हेन इट वाज स्टार्टेड इन अप्रैल 6, 1853. ओके, एंड इट मूव्ड फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. 21 माइल्स का जो डिस्टेंस था वो इसने कवर किया था. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे फॉर देयर बेनिफिट एंड दीज वर commercial advantage. First is commercial advantage. It means it helped them in trade. Railways ने trade में help किया. Railway collected raw material from fields and mines and sent them to the port to be transported to England to feed the British industries. Railway raw material collect करता था areas से, miles से, माइंस से, एंड फील्ड से, डिफरेंट फील्ड से, एंड पोर्ट एरिया तक ट्रांसपोर्ट करता था, और वहाँ से वो इंग्लैंड की तरफ मूव करते थे टू फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट. रेलवे सेफगार्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया to enable quick movement of armed forces and administrative convenience. As we have discussed कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल पूरे इंडिया पर था, मैक्सिमम पार्ट पर था इंडिया के. सो देयर वॉज अ नीड ऑफ क्विक मूवमेंट, कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ही कोई रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर they had to move as soon as possible. ठीक है, तो क्विक मूवमेंट के लिए they need railways, और रेलवेज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की आर्म्ड फोर्सेस की, ब्रिटिशर्स के और ऑफिसर्स की. जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनकी बहुत हेल्प की टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. डिफेंस एस्पेक्ट. The railway helped the British defense forces in India to counter the military attack of other imperialist countries who were trying to expand their influence. अब हमारे पास रेलवेज थी, इट मीन्स ब्रिटिशर्स के पास रेलवेज थी, सो उनकी जो ट्रूप्स थी, उनकी जो सोल्जर्स थे, आर्मीज थी, वो किसी भी एरिया में ईजीली मूव कर सकती थी, और इससे ब्रिटिशर्स को अपना जो रूलिंग एरिया था उसे डिफेंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. जो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ जो यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहती थी, वो जब अटैक करते थे, मिलिट्री अटैक, तो उस मिलिट्री अटैक से खुद को सेव करने के लिए ब्रिटिशर्स को
आर्मी भेजना था वहाँ पे, तो विद द हेल्प ऑफ रेलवेज इट वॉज ईजी to send their people to different areas. Okay, investment of surplus income, they earned so much money from India, तो उसका यूज तो करना था ना कहीं, so it was the investment of surplus income. रेलवेज ने न्यू एरियाज ओपन किए वेयर इन्वेस्टमेंट अर्न ह्यूज प्रॉफिट, बहुत से नए एरियाज ओपन हुए जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी और प्रॉफिट्स लिए जा सकते थे. ओके, कालका मेल जो अभी भी मूव कर रही है हमारे रेलवे ट्रैक्स पर हमारे कंट्री में, कालका मेल फ्रॉम हावड़ा टू कालका. हावड़ा इज इन बंगाल एंड जो कालका है वो हिली एरिया है. ओके, तो हावड़ा से कालका तक कालका मेल को इंट्रोड्यूस किया गया टू मेक द एनुअल माइग्रेशन ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, देयर फैमिलीज, सर्वेंट्स एंड क्लर्क्स फ्रॉम द imperial capital at Calcutta to the summer capital in Shimla. Summers में it was very hot in Calcutta. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स केम फ्रॉम country where the temperature was not so much high. ठीक है, तो वहाँ पर कोल्ड एरियाज थे, टेम्परेचर डाउन रहता था मैक्सिमम. ब्रिटेन में अभी भी ऐसा ही है वहाँ का क्लाइमेट के टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर, बट इन आवर कंट्री इन समर्स जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने एक ट्रेन लॉन्च की जो कालका और हावड़ा का जो डिस्टेंस है वो पूरा करती थी, कवर करती थी. ओके, तो हेल्प करती थी ये ट्रेन कालका मेल ब्रिटिशर्स को अपनी कैपिटल जो कैलकटा थी उनकी कैपिटल, वहाँ से समर कैपिटल के गर्मियों में वो हिल स्टेशन की तरफ मूव हो जाते थे. ठीक है, because it was very much hot in plain areas, so they moved to hill stations. तो कालका मेल helped it. ठीक, from Kalka there is still a narrow gauge to Shimla that passes through 103 tunnels, और अब 102 टनल्स हैं जो यूज़ की जा रही हैं. ठीक है, एक टनल को बंद कर दिया गया है. ओनली 102 टनल्स आर ऑपरेशनल नाउ. अभी भी ये जो एक नैरो गॉज है, एक छोटी लाइन है कालका से लेकर शिमला तक. ठीक है, और 103 टनल्स थी जिसके अंदर से ये रेलवे ट्रैक मूव करता था, बट ओनली 102 टनल्स आर ऑपरेशनल नाउ. अब सिर्फ 102 टनल्स को यूज किया जा रहा है. ओके, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. अब जब भी कोई नई चीज आती है तो उसको ओपोज किया जाता है. ठीक है, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन. It offended the people of higher caste as people from all castes has to sit together. And firstly तो ये प्रॉब्लम थी कि there was caste system at that time, and जो higher caste people थे they were offended by this. वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे, नाराज़ हो चुके थे कि वहाँ पर हम कास्ट को देखकर नहीं बैठ रहे हैं. जिसने टिकट लिया है वो रेलवेज में इजीली अपनी सीट ले सकता है. ओके, तो दे हैड टू सिट टुगेदर. उन्हें एक साथ एक ही बर्थ पर बैठना था, एक ही सीट पर बैठना था. तो इट ऑफेंडेड हायर कास्ट पीपल. ओके, एंड इंडियंस वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास जैसे आजकल एसी होते हैं, एट दैट टाइम देयर वाज फर्स्ट क्लास. जो ज़्यादा रिच पीपल थे और द ब्रिटिशर्स, ठीक है, दे कुड ट्रेवल थ्रू दैट फर्स्ट क्लास. ठीक, वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते थे, बट जो कॉमन पीपल थे दे वर नॉट अलाउड टू ट्रेवल इन फर्स्ट क्लास. ठीक है,
It was reserved for European, but in any case, railway provided many avenues of profit making for the British. अब अगर देखा जाए तो रेलवे ने बहुत सारे हेल्प की, बहुत सारा बेनिफिट दिया ब्रिटिशर्स को. ओके, चाहे इसको अपोज किया गया था, इंडियंस ने भी अपोज किया, बट इट बेनिफिटेड ऑल द पीपल. चाहे वो इंडियंस थे या ब्रिटिशर्स थे, सबको रेलवेज ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए थे. ओके, Indian Railways is the largest railway network in Asia and the world's second largest after USA. सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है एशिया का और वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, क्योंकि सबसे बड़ा कौन सा है? यूएसए का. इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स विद अ स्टाफ ऑफ ओवर 1.4 मिलियन पीपल. हमारे इंडियन रेलवेज का सबसे ज़्यादा स्टाफ है, 1.4 मिलियन पीपल से ज़्यादा लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं रेलवेज में. ओके, सो दिस इज अबाउट रेलवेज अंडर द ब्रिटिश. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.